वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees, seeking the blessings of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and all Vaishnavas. Today we will discuss chapter 8, 22 shloka. 22 already we discussed yesterday. डिस्कस किए थे। पुरुषो स्व परापार्थ भक्त लभस्तु अनन्या जस्यांत स्थानि भूतानि जैन सर्वम इदम ततम। The supreme personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in his abode, he is all pervading and everything is situated within him. It is here clearly stated that the supreme destination from which there is no return. So Golok Vrindavan, once one goes to the spiritual world, it never comes back. So Brahma Samhita describes supreme abode as Ananda Chinmaya Rasa. So today we'll discuss about this. Ananda Chinmaya Rasa means a place where everything is full of spiritual bliss, Ananda. There is no Vaikuntha, no Kuntha, Ananda. All the variegatedness manifest there is of quality of spiritual bliss. Nothing is there is material. Variegatedness expanded as the spiritual expansion of the Supreme Lord Godhead Himself. For the manifestation, there is totally the spiritual energy as explained in chapter 7. As far as this material world is concerned, although the Lord is always in His supreme abode, He is nonetheless all pervading by material energy. तो भगवान भी उनका material energy में यहाँ पे present रहते हैं, हम डिस्कस किए थे. तो to enter Krishna supreme abode or innumerable Vaikuntha planet is possible only by bhakti. तो भक्त्या माम अभिजानाति. तो no other process can help. And Ekavasi Sarvaga Krishna. In that abode there is only one supreme personality Godhead whose name is Krishna. He is the supreme merciful deity. And although situated there as one, he has expanded himself into millions and millions of planetary expansions. The Vedas compare the Lord to a tree standing still yet bearing many varieties of fruits, flowers, and changing leaves. The planetary expansion of the Lord who preside over the Vaikuntha planet are four-armed, and they are known by variety of names. Purushottam, Tibrikama. Already we discussed the different Vishnu form. एंड भगवान भी एक्सपांड होके जो जितना भी जीव है उसका अंदर भी परमात्मा रूप में भी रहते हैं. तो मतलब कितना एक्सपेंशन है इसका मतलब, इसीलिए मिलियंस ऑफ एक्सपेंशन लिख रहे हैं, प्लेनरी एक्सपेंशंस. एंड गोलोक यूनिवर्सिटी अखिलात्मा भूत. एंड भगवान गोलोक में रहते हैं लेकिन हर जगह में रहते हैं, उनका एनर्जी सब जगह में है. लाइक स्पिरिचुअल एंड मेटेरियल बोथ एनर्जी आर देयर, इसलिए भगवान सब जगह में है. देन 23 श्लोक टुडे विल डिस्कस. यत्र काले तो अनावृतम आवृतम चैव योगिन प्रयाता जानती तम कालम बक्षामि भरतर्षभा. O best of the Bharat, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world the yogi does or does not come back. तो पहले श्लोक में पहले बताएं कि जो मेरा धाम को जाएगा वो नहीं आएगा. तो देन यहाँ पे डिटेल बोलना चाह रहे हैं कि कहाँ कौन कैसे उनको प्राप्त हो सकता है और कौन नहीं प्राप्त हो सकता है. तो इसलिए और इसका कुछ टाइम का इन्फ्लुएंस है, कुछ समय काल टाइम इन्फ्लुएंस और प्लेसेस इन्फ्लुएंस है, कुछ है या नहीं है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं. तो जो भक्त है उनके लिए ओवरऑल यहाँ पे सारे कैटेगरी लोगों के लिए बताया गया है. जैसे कर्मकांडी प्रिंसिपल्स में जो रहते हैं, फ्रूटिव एक्टिविटीज जो करते हैं, कर्म को कुछ फल प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं, पुण्य कर्म भी कर लेते हैं, तो वो उनका पोजीशन क्या होगा, और ज्ञानी और जोगी का पोजीशन क्या होगा. जोगी में ध्यान जोगी, अष्टांग जोगी, उसका पोजीशन क्या होगा, एंड भक्त का पोजीशन क्या है. तो यहीं पे नेक्स्ट जो श्लोक है इसमें ये बताए रहेंगे आगे में क्या भक्त का क्या पोजीशन है. भक्त के लिए समय काल टाइम का इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है. ये कभी भी शरीर त्याग कर सकते हैं. अगर कभी भी त्याग कर सकते हैं, either by accident or by arrangement or at any time, maybe daytime, night time.
तो ये टाइम का इन्फ्लुएंस होता है, डे टाइम, नाइट टाइम, एंड इसका इन्फ्लुएंस में डिफरेंट लोग डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताएँगे जो किसका क्या पोज़ीशन है, किस टाइम में शरीर त्याग करने से कहाँ जाएँगे, कौन-सा कैटेगरी लोग। तो यहाँ पे ये समरी में आगे में ये आएँगे। लेकिन भक्त के लिए कोई समय, कोई सिचुएशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ये बाई चांस वो जैसे भी एक्सीडेंट होके भी चला जाता है, तो भगवान उनको याद दिला देते हैं, इन द सेंस दैट भगवान को याद करने से तो भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसीलिए अंत काले समय में वो जो डिस्कस किए थे, तो एट द टाइम ऑफ डेथ कैसे रिमेंबर कर सकते हैं? तो भगवान सबका हृदय में बैठे हैं, सर्वसत्याम हृदय सन्निविष्ट मत्त श्रुति ज्ञान अपनम च। तो भगवान सबका हृदय में बैठे हैं और सबको मेमोरी, इंटेलिजेंस, फॉरगेटफुलनेस, नॉलेज एवरीथिंग वो दे रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान देंगे, तो एक ट्राई करेगा रिमेंबर करने के लिए, ठीक है, लेकिन जब तक भगवान उसको सैंक्शन नहीं करेंगे, तो भगवान को वो याद नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान सबका हृदय में बैठ के परमात्मा रूप में जानते हैं, ये एक्चुअली क्या चाह रहा है, तो उसी से उसको फैसिलिटेट करते हैं। उस हम उनको कभी चीटिंग नहीं कर सकते, वो तो सबसे बड़ा चीटर भगवान ही है। तो इसीलिए अगर हम रियली भगवान को पाना चाह रहे हैं और हम उनको डिज़ायर है और स्ट्रांगली डिज़र्व कर रहे हैं, तो भगवान सैंक्शन कर देंगे। तो इसीलिए लेकिन सपोज़ कोई कर्मी है, ओनली एन्जॉय करना चाहता है, भगवान को सरेंडर फुल्ली नहीं करेगा, पार्शियली करेगा, तो उसके लिए भी वो रिज़ल्ट पार्शियली रिज़ल्ट आएगा। तो उसका जो डिज़ायर है उसी हिसाब से भगवान अरेंजमेंट कर देंगे। तो भगवान तो सबका बेस्ट विश ओनली ईश्वर फ्रेंड है, टू द सर्वभूतानां। तो इसलिए जो जैसे चाहता है भगवान उसे रिसिप्रोकेट करते हैं। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। यहाँ पे भक्त के लिए है कि वो सब समय ट्राई करता है भगवान को सेवा करने के लिए, भगवान का सेवा करें तो इसलिए भगवान उनको कृपा करके उनका सेवा में एंगेज कर देंगे और इस लाइफ का बाद में भी उनको सेवा में लगाएँगे वहीं पे। तो इसीलिए भगवान उनको व्यवस्था करते हैं, आइदर एक्सीडेंट में चला जाए या भाई नेचुरली डेथ हो या दिन में हो या रात में हो, समय कोई सिचुएशन इसका ऊपर में उनका भगवत धाम या भगवत प्राप्ति का डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए कभी भी शरीर त्याग करेगा, भगवान उसको ले जाएगा। तो इसलिए कभी-कभी मन में आता है या हम लोग कैसे एट द टाइम ऑफ डेथ व्हिच वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, हमारा कफ-पित्त ये सब मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस टाइम में कैसे हम भगवान को याद करेगा? क्योंकि हम तो ऐसे भी को माइनर डिफिकल्टी आता है, हम लोग भगवान को याद नहीं कर पाते। तो लेकिन इसलिए उनके लिए वरीड नहीं होना है बोल के भगवान बोलते हैं कि डोंट वरी एट एनी मोमेंट यू शुद्ध भक्त अगर भगवत कभी भी शरीर त्याग करेगा कोई किसी समय में भी तो भगवान उनको लेके जाएँगे, उनको रिमेंबर करा देंगे। तो इसलिए एग्ज़ाम्पल जैसे दे सकते हैं जैसे हम लोग महीना में सपोज़ कोई नौकरी कर रहे हैं, तो हमारा कोई 4 दिन छुट्टी है संडे को या किसी का सैटरडे संडे छुट्टी है, तो उस दिन 8 दिन छुट्टी हो गया महीना में। लेकिन तनख्वाह तो पूरा महीना 30 दिन का, 31 दिन का तनख्वाह पूरा मिलता है। तो हम लोग तो उस दिन हो सकता है कि छुट्टी का दिन में काम नहीं किया, लेकिन तनख्वाह मिलता है। यस, तो इसीलिए जब हम ज़िंदगी भर लेकिन ह अभी कोई नौकरी में जॉइन नहीं करके, वो बोलेगा मैं शुरू से हमको छुट्टी दे दीजिए और पैसा दे दीजिए उसका, वो नहीं होगा। तो कुछ दिन नौकरी करेगा तो इसके लिए 15 डेज़ या 30 डेज़ का ईएल है, एचपीएल है, तो नौकरी करेगा 6 मंथ्स का ब इसमें ड्यूरेशन में कुछ 15 डेज़ का ईएल मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट 6 मंथ 15 डेज़ मिलेगा, तो इस टाइप का है। तो लेकिन अगर बिल्कुल नौकरी ही नहीं करेगा, अच्छा, जॉइन ही नहीं किया होगा, ड्यूटी नहीं करेगा, शुरू से छुट्टी माँगेगा, तो उसका जो छुट्टी कैसे होगा? वो अनऑथराइज़ लीव हो जाएगा। नहीं तो उसके लिए सैलरी कट होगा, लेकिन फुल सैलरी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा जैसे भी है इसमें एग्ज़ाम्पल इसलिए ये दिया जाता है, इसको ध्यान से हम लोग सुनेंगे, तो कैसे हम भगवान कैसे एश्योर हो सकते हैं? एश्योर मीन्स हमारा कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? ये ज़रूर एट द टाइम ऑफ डेथ भगवान हमको रिमेंबर करके लेके करा के लेके जाएगा। ये कैसे भक्त के लिए कॉन्फिडेंस आएगा ये एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम में हम लोग उसको हम किसी से सुना था इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो बहुत कन्विंसिंग आंसर है। जो नेचुरल लाइफ में होता है उसको देख के।
तो इसीलिए नौकरी किया महीना में, देन 4 दिन का छुट्टी के लिए भी तनख्वाह मिलता है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है। अभी बिल्कुल नौकरी नहीं किया, शुरू जॉइन ही नहीं किया, जॉइन करके पूरा छुट्टी में चला जाएगा, उसको सैलरी कैसे देगा? तो इसी टाइप का यहाँ पे ऐसे ही भगवान का जो है सेवा जो करता है कंटिन्यूअसली, तो भगवान अगर बाय चांस एट द टाइम ऑफ कोमा में चला गया, लोग ये प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है, तो एंड ऑफ द टाइम में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, या ऐसे भी कोई डिजीज में कोमा में चला गया, तो उसका आदमी वो रिमेंबर तो नहीं कर पाएगा, तो भगवान उसको कैसे लेंगे फिर? तो इसलिए कोई भी सिचुएशन हो, भगवान उनको गारंटी देते हैं। तो तुम डोंट वरी फॉर दैट, आई विल टेक टेक बैक टू यू, आई विल गेट रिमेंबर्ड, मैं मेरा बारे में रिमेंबर तुमको रिमेम्बरेंस दे दूंगा, और नहीं तो मैं तुमको लेके भी जाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि आप जिंदगी भर मेरा सेवा किया, मेरे को चिंतन किया, तो इसीलिए लास्ट में हम तुमको ले जाएगा, इसको डोंट वरी। तो इसलिए इसका जो ये है, तेषामहं समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवसित चेतसाम्। तो उसमें वही है कि हम लोग तेषामहं समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरात्, तो मैं तुमको उसी लोग को मैं मृत्यु सागर से मैं खुद आके उसको उठा के ले जाऊँगा। हाँ, अगर मयि आवसित चेतसाम्, अगर तुम्हारा माइंड मेरे पास में सब समय फिक्स रखोगे, तो मैं आके उद्धार करके ले जाऊँगा। सिमिलरली अगर जो भगवान के लिए कंटिन्यूअसली सेवा कर रहा है, उसके लिए ये भगवान अरेंजमेंट करते हैं, उनका लेने का व्यवस्था भगवान ही करते हैं, उसके लिए वरीड नहीं होना है। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्पल दिया, छुट्टी अगर 30 दिन से जो 4 दिन छुट्टी पड़ता है, उसको तो उसका भी तनख्वाह मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग हमारा काम है कि हम लोग ट्राई करेगा, हम लोग 24 आवर्स भगवान को सेवा के लिए चिंता करना चाहिए। अरेंजमेंट में हम लोग ट्राई करेगा, तो भगवान कृपा करके इसको करना है। तो इसीलिए ये जो श्लोक था 12 अध्याय का 6 टू 6 एंड 7 श्लोक में ही बोलते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मोहि संन्यास मत्परः अनन्यैव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धाता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवसित चेतसाम्। बट दोज हु वर्शिप मी गिविंग अप ऑल देयर एक्टिविटीज ऑन टू मी, तो इसका काम कैसे होगा, किसको उद्धार करेगा? जो उनको कंटिन्यूअसली उनका सारे एक्टिविटीज को उनका पास में सब भगवान के पास समर्पण करेगा, एंड बीइंग डिवोटेड टू मी विदाउट डेविएशन, सब समय भगवान के प्रति हमारा भक्ति का रखना है, एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, भगवान का भक्ति में सब समय एंगेज रहना है, एंड ऑलवेज मेडिटेटिंग अपॉन मी। जो सुख का टाइम में भगवान को याद नहीं रख पाया, तो ये प्रॉब्लम का टाइम में कैसे याद रखेगा? तो इसलिए ऑलवेज मेडिटेटिंग अपॉन मी, हैविंग फिक्स्ड देयर माइंड्स अपॉन मी, ओशन ऑफ पृथा, फॉर देम आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो भगवान हम लोग इसलिए बोलते हैं कि सिक्का रखते हैं, इसलिए ये भगवान आके हमको सिक्का पकड़ के उठा के लेके जाएंगे। अब वो सिक्का तो शरीर का होता है, लेकिन आत्मा को लेके जाएंगे ना, तो शरीर तो शायद रह जाएगा यहाँ पे, फुल शरीर में तो हम लोग जाने का कैपेबल नहीं है। ये थोड़ी ध्रुव महाराज हो गया कि वो ठीक है, जो सशरीर में चले गए। तो हम लोग का अगर सिक्का है तो ठीक है, अच्छा है, अगर बाई चांस भी नहीं है, लेकिन वो इसमें लिखा है कि 24 आवर भगवान को रिमूवल करना है। सिक्का है तो अच्छा है, पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका कोई लिखा नहीं कि उसको लेके जाएंगे, तो सिक्का रखेंगे तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि ऑलवेज रिमेंबर करना है 24 आवर्स, अंतर्निष्ठा बाह्य लुकाचार। हम लोग अंतर में सब समय भगवान को चिंतन करेंगे, उनका सेवा करेंगे। तो भगवान बोलते हैं तेषामहं समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवसित चेतसाम्। तो इसलिए मेरे को आके पकड़ के हमको हमको मतलब हमने सोल, शरीर नहीं है, तो सोल को लेके चला जाएंगे। तो उनके लिए हमारा वरीड नहीं होना है कि प्रभु आएंगे क्या, ये डाउट क्यों रखना नहीं चाहिए। तो प्रभु आएंगे अगर हम उनका सेवा कंटिन्यूअसली करेंगे। तो इसलिए भक्त के लिए ये सिचुएशन है कि कभी भी हो सकता है। एंड इसीलिए 20 अभी एट द टाइम ऑफ डेथ एक्सीडेंटली, इसीलिए बोला कि एक्सीडेंटली चला गया, तो एक्सीडेंट हो गया और शरीर त्याग कर दिया, तो रिमेम्बर नहीं कर पाया, सपोज क्या करेगा? लेकिन भगवान उसको ले जाएगा, रिमेम्बरेंस दे देगा, नहीं देगा भी तो तभी ले चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान का गारंटी है उसमें। तो इसलिए भक्त के लिए स्पेशल इसमें कोई सिचुएशन अलग अलग होना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा लोग के लिए अलग अलग सिचुएशन है, नेक्स्ट फ्लोक में आएंगे यहाँ पे, तो उसका समरी पहले देख लेते हैं, देन हम लोग उसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये श्लोक में मैं बार बार पढ़ता हूँ, फिर भी उसको समझ में डिफिकल्ट होता है।
तो एनीवे इसलिए श्रील प्रभुपाद का कृपा है, उन्हें भक्त लोग का जो समरी कर देते हैं तो थोड़ा सा हम लोग समझ आते हैं। तो यहाँ पे दूसरा लोग के लिए क्या सिचुएशन है, कर्मी के लिए, ज्ञानी के लिए, ध्यानी के लिए। तो वो जो दो टाइप का टू वेज ऑफ लिविंग दी बॉडी, अच्छा, एक है दो टाइप का शरीर को त्याग करने का समय है या सिचुएशन है, एक पाथ ऑफ लाइट, एक पाथ ऑफ डार्कनेस। मतलब दिन का समय ऑस्पिशियस मोमेंट में लाइट, इन द लाइट मीन्स डे लाइट, एंड द फायर, प्रेजेंस ऑफ फायर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सन गॉड और फायर गॉड, एंड ड्यूरिंग द डे और इन शुक्ल पक्ष, जो शुक्ल पक्ष में जाएगा, और जो उत्तरायण समय मतलब जिसमें इस टाइम में सन विल बी टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इसलिए उत्तरायण समय, तो ये 6 मंथ्स है। तो ये भीष्मदेव उत्तरायण में शरीर त्याग किए। तो उत्तरायण कब है? जनवरी 14, जो मकर संक्रांति है उससे उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है। तो एंड ये 6 महीना रहता है, फिर दक्षिणायन, फिर 6 महीना, कर्कट क्रांति से कर्कट संक्रांति, फिर उसका बाद में मकर संक्रांति से 6 महीना, उसका बाद में उत्तरायण दक्षिणायन आ जाएगा। तो ये उसी टाइम में अगर छोड़ेंगे शरीर, पाथ ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। कौन छोड़ेंगे? जो ज्ञानी एंड जोगी के लिए, नॉट कर्मी। तो ज्ञानी एंड जोगी अगर इस सिचुएशन में छोड़ेंगे शरीर, पहले तब वो कहाँ जाएंगे? तब वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे, मीन्स ब्राह्मण प्लेटफॉर्म को, नॉट कृष्णा को। तो यहाँ पे ब्रह्म ज्योति उसको बोलते हैं लिबरेशन, मुक्ति एंड लिबरेशन, और उसको बाद पाथ ऑफ नो रिटर्न बोलते हैं। तो ज्ञानी एंड जोगी के लिए उसका मतलब वो अगर एक ज्ञानी है जोगी क्या कर सकते हैं, जोगी लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं हम शरीर को, हमारा आत्मा को अज्ञा चक्र का लेके निकालेंगे कि, और टाइम को फिक्स करते हैं कि डे टाइम में जाऊंगा, और सन गॉड का प्रेजेंस में, मतलब डे टाइम एंड उत्तरायण में ये लोग ट्राई करते हैं कि अपना भाई सिचुएशन कंट्रोल करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से इस हम शरीर को त्याग कर देगा। तो तब भी कहाँ जाएंगे? तब भी मैक्सिमम हो जाएंगे ब्रह्म ज्योति को, भगवत धाम नहीं जा सकते। तो ये पाथ ऑफ लाइट में है। और ये ज्ञानी एंड जोगी, क्योंकि जोगी लोग किसको? परमात्मा को ध्यान करते हैं, लेकिन ये जाके, और ज्ञानी तो ब्रह्म ज्योति, तो इसलिए ये मैक्सिमम यहाँ पे चलेगी, ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे। एंड पाथ ऑफ डार्कनेस जो नाइट का टाइम में जाएगा, ड्यूरिंग द स्मोक इन कृष्णा पक्ष, इन दक्षिणायन, इसमें जो कर्मी कर्मी जाता है, कर्मी लोग उनके लिए एप्लीकेबल है। ये कर्मी लोग अगर रात में इस टाइप का जाएगा तो कहाँ जाएगा? हेवन, मतलब ये जो ब्रह्मांड का अंदर में स्वर्ग लोक को जाएगा। वो ब्रह्मांड का अंदर में रहेगा, बाहर में नहीं रह सकता है। एंड वो जाके फिर क्या होगा? उसमें बहुत दिन जाके एंजॉय करेगा। हो सकता है मून प्लैनेट में चला जाएगा 10,000 ईयर्स, वहां से समरस वगैरह पिएगा, उसका बाद में फिर ये मर्त्य धाम में आ जाएगा। तो कुछ दिन वहाँ पे हेवनली प्लैनेट्स में जाके एंजॉय करने के लिए उनको टाइम मिलता है। तो ये कर्मी लोग जो फ्रूटिव एक्टिविटीज करते हैं, कर्मकांडी, जो कुछ फल प्राप्त करने के लिए कुछ देव देवी पूजा कर लेते हैं, इस टाइप का है। तो उनके लिए ये जो देव को पूजा कर लेगा वहीं चला जाएगा, वहां जाके एंजॉय कर लेगा, फिर उसके बाद में फिर आ जाएगा इसी मेटेरियल वर्ल्ड में। तो दिस इज दी आज का जो डिस्कशन है। तो और डिवोटीज के लिए इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑल द टाइम डिवोटी नो, उनको दो रास्ता मालूम होने से भी वो लोग इसके लिए ट्राई, डे नाइट ये सबको ट्राई नहीं करता है। दे आर नेवर बिल्डर, क्या क्या होगा, मेरा मेरा पोजीशन में, मैं भगवान के पास में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये सब नहीं है। तो देयरफॉर ही ऑलवेज फिक्स्ड इन डिवोशन अर्जुन, क्योंकि भगवान वो जानता है कि जो भगवान करेंगे वही अच्छा है। इसलिए ये जो आज का डिस्कशन है, इसमें हम लोग समरी में डिस्कस करिए, करने के बाद में इस श्लोक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तभी यहाँ पे जो जत्र काल है 23 नंबर श्लोक में, तो अनावृतम अवृतम चैव जोगिन प्रयातो जानती तम कालम बक्ष्यामि भरतर्षभा। O best of the Bharata, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world the yogi does or does not come back, either yes or no। purport में इसका प्रपात बोलते हैं, the annulled devotees of the Supreme Lord who are totally surrendered souls, जो पूर्ण जो भक्त है, प्योर डिवोटी, डोंट केयर व्हेन दे लीव देयर बॉडीज बाय और बाय व्हाट मेथड, कैसे और कब ये जाएंगे उसका कोई चिंता नहीं है। दे लीव एवरीथिंग इन कृष्णाज हैंड एंड सो इजीली एंड हैप्पीली रिटर्न टू गॉड एंड भगवत धाम चले जाएंगे। बट दोज हु आर नॉट एनोलेड डिवोटी, जो मिश्र भक्त है, एंड हु डिपेंड इंस्टेड ऑफ सच मेथड स्पिरिचुअल रिलेशन एज कर्मयोग, ज्ञानो एंड हठ योग, मस्ट लीव द बॉडी एट अ सुइटेबल टाइम। अगर इस टाइम में इस सिचुएशन में
जाएगा तब वो कहीं तक जाएगा, नहीं तो नरक परक जाएगा। एंड इन ऑर्डर टू बी श्योर ऑफ whether or not they will return to the world or birth and death of birth and death. So if the yogi is perfect है, perfect होने से he can select the time and situation for living this material world. But if he is not so expert, his success depends on accidentally passing away at a certain suitable time. तो either by अपना arrangement में अपना बलबूत में चेष्टा करेगा, ध्यान करके ये करके, और उसी टाइम में जाएगा तब उसका जो होगा, नहीं तो एक्सीडेंटली भी जाएगा तब भी चलेगा। And the suitable times at which one passes away and does not come back are explained by the Lord in the next verse. According to Acharya Baladev Vitabhushan, the Sanskrit word kala used to refer to herein refers to the presiding deity of time. मतलब जो इस काल में, मतलब वो काला का प्रेजाइडिटी, तो प्रेजाइडिंग डिटी ऑफ टाइम, तो ये जैसे फायर, फायर गॉड है, तो इसलिए सबका एक एक गॉड है। तो वो लोग क्या करेंगे, उनको फायर गॉड का चार्ज में कुछ डिस्टेंस ले जाएंगे, फिर नेक्स्ट डीटी जो है वो और थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, तो इनका इस टाइप का फैसिलिटीज में ऊपर जा सकते हैं। तो 24 श्लोक, अग्नि ज्योतिर अहर शुक्ला सन्मास उत्तरायण तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, जो हम लोग अभी डिस्कस किया, इसी श्लोक में दिया गया, जो शुक्ल पक्ष में जाएगा। दोज हु नो द सुप्रीम ब्रह्मन attain the supreme by passing away from the world during the influence of fiery god who know the supreme brahman in the light at an auspicious moment of the day during the fortnight of waxing moon or during 6 months when the sun travels in the north. तो ये ऑस्पिशियस मोमेंट दिन में देखना पड़ेगा, इनऑस्पिशियस मोमेंट होगा तो नहीं होगा। एंड ड्यूरिंग फोर्टनाइट शुक्ल पक्ष में, एंड ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ फायरी गॉड, अग्निदेव का इन्फ्लुएंस से इस टाइप का सिचुएशन बनाना पड़ेगा, तभी वो जा सकता है। तो व्हेन फायर डे लाइट, when fire light day and fortnight of the moon are mentioned, it is to be understood that overall of them there are various presiding deities who make arrangement for passage of the soul. एक डीटी कुछ सोल को कितना दूर लेकर जाएगा, फिर नेक्स्ट कितना दूर इसे ऊपर ले जाएंगे। At the time of death, mind carries one on the path of new life. If one leaves the body at a time designated above, either accidentally or by arrangement, it is possible for him to attain the personal Brahma Jyoti. तो मैक्सिमम ये जो ज्ञानी हैं जोगी कहाँ जाएंगे, ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं। Mystics who are advanced in yoga practice can arrange the time and place. जो योगिक पावर है, ये टाइम एंड प्लेस ठीक कर सकते हैं, आप उसी टाइम में छोड़ सकते हैं शरीर को, और दूसरा का कंट्रोल नहीं है। तो इफ बाई एक्सीडेंट वो लोग चला जाता है, तो देन दे विल आल्सो गो लाइक दिस, बट अदरवाइज देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट दे विल हैव टू रिटर्न। हाउएवर फॉर द प्योर डिवोटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर इज नो फियर। जब शुद्ध भक्त है उसके लिए क्या चिंता है, कुछ चिंता नहीं है, वो कभी भी छड़ शरीर त्याग कर सकता है, whether he leaves the body in at an auspicious moment or in a auspicious moment by accident or arrangement। इसलिए भक्त के लिए सब समय एक्सीडेंट हो या अच्छा हो, खराब है, सब अच्छा है। तो इसलिए कोई कोई सोचते हैं कि हम लोग अच्छा काम कब शुरू करेंगे, जब से शुरू करें वही अच्छा हो गया, भगवान का सेवा जब से करें। तो कोई पूछा हमारे टीचर को, जो हम माला शुरू करेंगे, हरि नाम करेंगे, कब से करेंगे, अच्छा मुहूर्त देखेंगे। तो उनको बोलते हैं कि नहीं, मुहूर्त तो जब आप शुरू करोगे तभी तो अच्छा मुहूर्त आ जाता है। तो भगवान, जब भगवान का नाम लोगे, भगवान प्रेजेंट रहेंगे तो अच्छा समय आ गया। तो इसलिए भक्त के लिए हम लोग का जो फैट लाइन एंड ऑल दीज थिंग्स, ये जो अगर शुद्ध भक्त है, ये काम में नहीं आता है, ये कुछ नहीं है, या चेंज होता है, क्योंकि ये सब तो कर्म का फल है, में ये रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन वह जो शुद्ध भक्त है, उनको के लिए क्या कर्म फल कुछ काम नहीं करता है। इसलिए अगर हम इस सिचुएशन में कर्म को क्रॉस करना है, तो फिर शुद्ध भक्ति करना है। तो 25 श्लोक, धूम रात्रि तथा कृष्ण सन्मास दक्षिणायनम तत्र चंद्रमाशम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। द मिस्टिक हु पासेस, मतलब जो योगी हु पासेस फ्रॉम दिस world during the smoke, the night, the fortnight of the waning moon or 6 months, when the sun passes to the south, reaches the moon planet, but again comes back. So in third canto Srimad Bhagavatam, Kapil Muni mentioned that those who are expert in fruitive activities, मतलब यह मिस्टिक मतलब जो कर्मी है उसका बारे में बोल रहे हैं, and sacrificial methods on the earth attend to the moon at death. These elevated souls live on the moon for 10,000 years
10,000 years by demigod calculation, वो मतलब बहुत ज़्यादा है। And enjoy life by drinking Somorasa. They eventually return to Earth. This means that on the moon there are higher classes of living beings, though they may be not be perceived by the gross senses. हम लोग जाते हैं मून में जाके ढूंढते हैं आदमी नहीं है, आदमी नहीं है, ठीक है आदमी नहीं है, लेकिन हायर क्लासेस ऑफ लिविंग बींग्स आर देयर कि इसको हम हमारा ग्रॉस सेंस में देख नहीं सकते। अगर भगवान यहाँ खड़ा हो जाएगा आके हम देख सकते हैं, हम वायु को नहीं देख सकते हैं, तो हम कैसे भगवान को देख सकते हैं? सिमिलरली जो ग्रॉस हायर हायर टाइप का लिविंग एंटिटीज है, उनको नहीं देख सकते। तो मून में भी है, हायर लिविंग एंटिटीज है। जैसे सन में भी है, तो बोलते हैं सन में कैसे इतना हाई डिग्री टेम्परेचर है, सन में कोई से कोई एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं से कर सकता है, लेकिन है, एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जाम्पल दिया जाता है? पानी में हम नहीं रह सकते हैं, पानी में मछली रह सकता है? यस। तो पानी में मछली रह सकता है, तो उसका जो गिल्स है, उससे वो ऑक्सीजन ले लेता है। तो उसका जो बॉडी है, बनाया गया है पानी में रहने के लिए। मछली रहता है, दूसरा रेप्टाइल्स भी रहते हैं पानी में। तो इसका मतलब नहीं हम नहीं रह पाते हैं, इसका मतलब नहीं दूसरा जीव नहीं है जो नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं। सिमिलरली जो वहाँ पे सन प्लैनेट में सूर्यदेव का जो प्लैनेट उसमें बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर है, उन वो रहने के लिए उनका बॉडी कैसे बनाना चाहिए? जो फायर में रह सकता है, उसको बोलते हैं फायरी बॉडी। आग में आग रह सकता है, नहीं रह सकता है? तो यस, तो उनका बॉडी वहाँ पे फायरी बॉडी है, जो कि वहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये साइंस से इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट देखिए एक लेमैन आल्सो कैन अंडरस्टैंड इट। अगर पानी में मछली रह सकता है, तो आग में तो कोई भी रह सकता है, उसका जो जिसका शरीर आग में बना हुआ होगा या फायरी बॉडी होगा। तो इसका मतलब वो हम परसीव नहीं कर पाते हैं, उसका मतलब नहीं है बोल के नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए क्योंकि कुछ जीव है भाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड में तो जीते हैं। तो कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है, कोई दूसरा लिविंग एंटिटीज है। तो लेकिन 100 के बाद में बोलते हैं हाई टेम्परेचर में बॉयल करेंगे तो बैक्टीरिया वगैरह मर जाएंगे। लेकिन वो हमसे ज़्यादा ठंड में या ज़्यादा गर्मी में रह सकते हैं। तो इसीलिए डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट बॉडी दिया जाता है, तो वहाँ पे डिफरेंट जगह में जैसे सिचुएशन में रह सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो मून गॉड में भी वहाँ पे भी जाके वो रहते हैं, तो 10,000 ईयर्स। देन 26 शुक्ल कृष्ण गति ही एत जगत शाश्वते मते एकया याति अनावृतम अन्य आवृतम पुनः। अकॉर्डिंग टू वैदिक ओपिनियन देयर आर टू एज, फिर दोबारा समराइज करते हैं। देयर आर टू एज ऑफ पासिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वन इन लाइट एंड वन डार्कनेस। When one passes in the light, he doesn't come back, but when one passes in darkness, he returns. तो इसका मतलब जो सिचुएशन पर डार्क लाइट में मतलब लाइक शुक्ल पक्ष एंड ऑल दिस थिंग्स जो डिस्कस किया, एंड ये जोगी एंड ज्ञानी लोग के लिए है। तो ये जाते हैं नो लिबरेशन पाथ में, मतलब ब्रह्म ज्योति को जाते हैं, नॉट टू गोलोक वृंदावन। एंड जो दूसरा जो कर्मी लोग है कर्मकांडी, तो वो लोग अगर डार्कनेस में जाएंगे और कृष्ण पक्ष में जाएंगे, इन्फ्लुएंस इसमें क्या करेंगे, जाके मून गॉड मून प्लैनेट को चला जाएंगे, वहाँ पे 10,000 ईयर्स रहेंगे, वो वहाँ पे अच्छा सोमोरस पियेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद में फिर ये रिटर्न होके फिर ये बहुत दिन का बाद में 10,000 ईयर्स जो डेमिगॉड कैलकुलेशन का ईयर्स का है, उसका बाद में ये नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आके फिर फिर पुनरपि जननम चलता रहता है। तो 27 श्लोक में नैति श्रुति पार्थ जानो जानोज्ञी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु जगोजुक्तो भवार्जुन। ऑल्दो द डिवोटीज नो दिस टू पाथ्स, उनको तो दोनों रास्ता मालूम है, अगर लाइट या डे। वो अर्जुन दे आर नेवर बिल्डर, उनको इसके कोई लेना देना नहीं है, बिल्डर नहीं होते हैं। देयरफॉर बी ऑलवेज फिक्स्ड इन डिवोशन, भक्ति में रहेगा, रात में जाओ दिन में जाओ, कैसे भी जाओ, किसी से बाई एक्सीडेंट जाओ, बाई अरेंजमेंट में नेचुरली जाओ, तो वो भगवत धाम जा सकता है। तो purport Krishna is here advising Arjun that he should not be disturbed by the different paths the soul can take. इसको सुन के अर्जुन को मतलब हम लोग को जो वरीड नहीं होने का बोल रहे हैं, when living the material world, a devotee of the Supreme Lord should not worry whether he will depart by arrangement or by accident. The devotee should be firmly established in Krishna consciousness and chant Hare Krishna. He should know the concern over either of these two paths. He should know that concern about either of these two paths is troublesome. ये जाने दोनों जाने से भी ट्रबलसम क्यों है? एक जगह ब्रह्मज्योति, वहां पे भी तो ज्यादा दिन नहीं रह सकता है।
तो द बेस्ट वे टू एडजस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू बी ऑलवेज डॉप्टेल इन हिज सर्विस। तो सबसे कृष्णा कॉन्शियस रहना कैसे? तो भगवान का सर्विस सेवा में रहो। तो एंड दिस विल मेक वंस पाथ नो पाथ टू द स्पिरिचुअल किंगडम सेफ सर्टेन एंड डायरेक्ट। सेफ सर्टेन एंड डायरेक्ट, तो ये सब सेवा में रहेगा। द वर्ड जोगयुक्त इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स। वन हु इज द फर्म इन योगीज yoga is constantly engaged in Krishna consciousness in all his activities. Sri Rupa Goswami advises ananasaktasya visayan yatharam upayunjuta. One should be unattached in the material affairs and do everything Krishna consciousness. तो इस मटेरियल वर्ल्ड में रहेगा, लेकिन यहाँ पे अटैच में नहीं रहेगा, वो भगवान का सेवा में अटैच में रहेगा, माया में अटैच नहीं रहेगा। ब्रह्मणि आधाय कर्मणि संगम तक्ता करती हो विप्यतन सोपापेन पद्म पत्र विभाम बसा। तो हर चीज को पद्म पत्र से रहेगा पानी में, लेकिन पानी उसको टच नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे भी रहेगा मेटेरियल वर्ल्ड में, तो लेकिन उसको मेटेरियल वर्ल्ड का आसक्ति उसका नहीं रहेगा, वो भगवान का सेवा में रहेगा, तो देन वो जा सकता है। तो वन इज फार्म इन योगा इज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इन ऑल हिज एक्टिविटीज। रूप गोस्वामी एडवाइजेस अनासक्त। इसलिए by this system which is called yukta vairagya, इसको बोलते हैं, one attains perfection. Therefore the devotee is not disturbed by these discussions because he knows that this his passage to the supreme abode is guaranteed by devotional service. भक्ति करेगा guaranteed है। तो इसलिए यहाँ पे जो अनासक्त से विषयान यथारण उपयुक्त, उसमें मतलब ये युक्त वैराग्य प्रिंसिपल है, जो जो मिला है सारे चीज को भगवान का जानते हुए भगवान का सेवा में लगाओ। तो इसलिए कोई भी सिचुएशन में है, हर सिचुएशन को यूटिलाइज करना है कृष्ण का सेवा में। कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज हमको मिलता है, कोई भी कुछ भी समय मिलता है, कुछ जहाँ जो सिचुएशन में हम आ सकते हैं आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भगवान का सेवा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम नौकरी करेगा तो भगवान सेवा नहीं कर सकता है, खाली मंदिर में जाएगा तो भगवान सेवा कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो हर चीज को भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, तो इसलिए उसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। तो देन 28 श्लोक में वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्यैति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम। ये लास्ट श्लोक है this chapter. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end, he reaches the supreme eternal reward. तो इसको सेपरेटली कोई बोलते हैं हम अच्छा दान धर्म कर दिए होंगे तो कुछ फल मिलेगा, वह फल मिलेगा तो वो मेटेरियल फल है। तो लेकिन भक्ति में रहेगा तो सारे चीज हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस और भक्ति पानासिया फॉर ऑल, इसमें सारे चीज बंडल्ड मिलता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि 1 लाख रुपीज है जिसका पास में, उसका पास में कोई 500 रुपया मांगेगा वो भी है, 1000 रुपया भी है, 10,000 रुपया भी है। लेकिन जिसका पास में 1 लाख से नहीं है, ऊपर नहीं है, तो 1 लाख से ऊपर मांगेगा तो कैसे देगा? इसलिए भक्ति में सब कुछ है ऑलरेडी। यज्ञ भी उसका फल मिल चुका है, तपस्या, क्योंकि हम भक्ति करते हैं तो हरि संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग जो हास्ट यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, तो यज्ञेषु तपस्सु, तपस्या हम लोग करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं हम। अर्ली मॉर्निंग राइज अप करना है, तो आजकल के लिए लोगों के लिए 10 बजे उठना है, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठेगा तो ये तपस्या हो गया। आज जैसे एकादशी है, एकादशी में फास्टिंग करना है, एकादशी में ये तपस्या हो गया। तो भगवान के लिए भोग लगाना, ये सब तपस्या हो गया। तो इसीलिए तपस्या, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। सबसे बड़ा दान क्या है? तो दान हम कर रहे हैं, हमसे सबसे बड़ा दान है। लोग भी डिफरेंट दान है, कोई बोलता है अन्नदान करता है, गुड, प्रसाद देते हैं। कोई बोलता है कि गीता दान करता है, गुड, गाय दान करता है, गुड। कोई बोलता है कि वस्त्र दान करता है, गुड। एंड सबसे गिफ्ट, सबसे हाईएस्ट गिफ्ट है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को गिफ्ट देते हैं, जो है किसी को भक्ति मार्ग में लाना, ये सबसे हाईएस्ट गिफ्ट है। एंड उससे कोई और जितना है उससे नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग भी करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो संकीर्तन यज्ञ हो गया, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बुक भी गिफ्ट भी देते हैं, गीता दान हो गया, वस्त्र भक्त लोग को या जिस तरह को वस्त्र भी दान करते हैं। तो हम लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सारी चीज तो उसमें करते हैं। तो दान तो हो गया उसमें। सेपरेटली क्या चाहिए कि सेपरेटली दान
वो जो खाली दान करता है, वो खाली दान के लिए इम्पोर्टेंस सोचता है, दान दे रहा है, दान दे रहा है, दान। लेकिन भक्ति जो कर रहा है, उसमें सारी चीज़ इंक्लूडेड है। तो इसे या इ इसका दूसरा मीनिंग भी है, अगर भगवान का बैठ के खाली हरिनाम भी कर रहा होगा, तब भी उसका और सारे कुछ चीज़ ऑटोमेटिकली पहले से कर चुका है। तो इसलिए ओह बत सो पचता गरियान जब जिह्वाग्रे वर्तते नामोत्तुभ्यम तेपुस तपस्सु भूर्भुवस्सुनो आर्या मतलब तपस्या तो ये सब कुछ वो कर सकता किया है एंड ही इज द सिविलाइज्ड पर्सन इसलिए बोलते हैं। तो जिसका जिह्वाग्र में हरिनाम चल रहा है, तो इसका मतलब जो हरिनाम खाली भी करता है, तो ये सारे कुछ मेरे पास में धन संपत्ति नहीं है, लेकिन हाईएस्ट धन तो वो हरिनाम कर रहा है। तो इसका मतलब उससे सब सारे दान भी हो जाता है, क्योंकि बोला है एक कृष्ण नाम कोटि कन्यादान शत सहस्र सुवर्ण भार तथापि न होय समान। तो एक बार हरि नाम कर दिया, एक कृष्ण नाम ले लिया, तो कोटि कन्यादान करने से जो फल है और माने हजार-हजार गोल्ड का भार अगर किसी को दान भी किया जाता है लोगों को, तो उसका के भी फल एक कृष्ण नाम से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऑटोमेटिकली इसका फल मिल जाता है जो हरि नाम करते हैं। तो इसलिए इस टाइप का सिचुएशन में जो भक्ति करता है, उसको सब कुछ हाईएस्ट है। पर्पट में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं दिस वर्स इज द सनम वन समेशन ऑफ द 7th एंड 8th चैप्टर्स। ये जो ये श्लोक लास्ट श्लोक है 8 चैप्टर का 7 एंड 8 अध्याय का ये समरी है, यह समम समेशन है। तो 7 अध्याय में नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट था, भगवान का बारे में ज्ञान था, एंड इसमें कैसे भगवान को प्राप्ति होगा ये दोनों दिया है। तो one who has studied the Veda under the guidance of the spiritual master and undergo many austerities and penances while living under his care. A brahmachari has to live in the home. तो मतलब इसका यह भी दूसरा भी मीनिंग है कि हम लोग गीता भागवत पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे क्या? तो भक्ति करें तो उसमें पढ़ते हैं, तो इसलिए गाइडेंस में रहकर पढ़ना है। तो ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचर्य है उसका स्वाध्याय इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग के भी स्वाध्याय है। तो ब्रह्मचर्य हैज टू लिव इन द होम ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर जस्ट लाइक ए सर्वेंट। तो पहले ब्रह्मचारी लोग गुरुकुल को जाते थे, उनका घर में सर्वेंट जैसे रहते थे, एंड मस्ट बेग आर्म्स फ्रॉम डोर टू डोर एंड ब्रिंग देम टू द स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमको इससे क्या सीखना है? हम लोग घर में है, गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन हम लोग गुरुदेव का पदाश्रय कर लिया, गुरुदेव से दीक्षा लिया, तो हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग भी कष्ट करना पड़ेगा भगवान के लिए, भक्त के लिए या गुरुदेव के लिए, ये सब सेवा करना पड़ेगा। तो ये ब्रह्मचारी जाके जो भी लाता है वो गुरुदेव को सब दे देता है। उसके बाद में गुरु पत्नी उनको क्या करते हैं, कुकिंग करके प्रसाद इनको जब बुलाएंगे तो भी खाएंगे खाने के लिए। अगर भूल गया बुलाने के लिए तो नहीं आएगा। उसका मतलब वो बोल नहीं सकता है मैं तो बेगिंग किया था, मैं तो भिक्षा करके लाया, तो मेरा उसका ऊपर अधिकार है। नहीं, उनका ऊपर वो अधिकार नहीं है, वो क्योंकि वो गुरुदेव का पास में आश्रय लिया है, गुरु का सब कुछ है। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हम तो नौकरी किया, तो नौकरी का ऊपर में पैसा हमारा, सैलरी मेरा अधिकार है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम किसका है? भगवान का है। और जब हम गुरुदेव का पास में सरेंडर कर लिया, तो और भी हो गया कि हम ऑथराइज हो गया, हम पूरा एक्सेप्ट कर लिया कि हम गुरुदेव का है, तो हमारा सारी चीज़ गुरुदेव का प्रॉपर्टी है। तो लेकिन यहाँ से ये सीखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग वो नहीं कर पाते हैं। तो ये ब्रह्मचारी हैज़ टू लिव, एंड उसके बाद में वो जो खुशी से जो देंगे उसको ग्रहण करेंगे प्रसाद का हिसाब से। तो ये इसीलिए ये ब्रह्मचारी, लेकिन अभी लोग क्या ब्रह्मचारी नहीं करते हैं, हम लोग इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग सरेंडर नहीं करते हैं। इवन कृष्ण भी, बलराम भी जाके सांदीपनि मुनि का जी का आश्रम में जाके ये सब भिक्षा करते थे। भगवान क्यों करते थे? भगवान तो अमीर है, भगवान तो सबसे मालिक है, उसको क्या लेकिन वो दिखाने के चाह रहे थे कि अगर सबको गुरु चाहिए और गुरु का पास में सरेंडर करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान करके खुद करके दिखाते हैं, नहीं तो वो नहीं करते, दूसरे लोग बोलेगा वो तो नहीं किए थे, भगवान नहीं किए। जजेज आचार्य श्रेष्ठ तत्तदेव वही जन। तो वो नहीं किया, हम क्यों करेगा? तो इसलिए देयर आर सम ऑफ द वैदिक प्रिंसिपल्स फॉर ऑब्जर्विंग ब्रह्मचर्य, और भी प्रिंसिपल्स है, उसको मानना चाहिए। He takes food only after the master's order, and if the master neglects to call the student for food that day, the students fast. These are the some of the Vedic principles for observing brahmacharya. After student life, then क्या आता है? Study the Vedas under the master of some time, at least from one age to 5 to 25, 5 to 20. He becomes a man of perfect character. Study of the Vedas is not meant for the recreation of armchair speculators, but for the formation of the character. तो ये जो वेद अध्ययन हम करते हैं, क्या है? स्पेकुलेशन करने के लिए, ये ज्ञान मिल गया स्पेकुलेशन करने के लिए नहीं। इसके इसलिए बोलते कि इट इज नॉट दी रिक्रिएशन ऑफ द आर्म चेयर स्पेकुलेटर्स। आर्म चेयर में बैठ के लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं, तो इसलिए आर्म चेयर स्पेकुलेटर्स।
पार्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। इसको पढ़ के अपना लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं पढ़ के खाली ज्ञान दूसरों को देना है, अपना लाइफ इम्प्लीमेंट करना है। आफ्टर दिस ट्रेनिंग द ब्रह्मचारी इज अलाउड टू एंटर इनटू द हाउस होल्ड लाइफ, गृहस्थ लाइफ में, एंड मैरी। व्हेन ही इज हाउस होल्डर ही हैज टू परफॉर्म मेनी सैक्रिफाइसेस सो दैट ही मे अचीव फर्दर एनलाइटमेंट। तो एक बाय स्टेज तो गृहस्थ में भी लाइफ में जाएगा तो वहां पे भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ, तो लाइक गृहस्थ का जैसे धर्म हम लोग डिस्कस पहले किए से, गृहस्थ का सारे धर्म, बहुत सारे धर्म है। तो इसमें वन इज ड्यूटी वर्शिप करेगा और भोग लगाएगा, प्रसाद आएगा, प्रसाद साधु को बांटेगा, जनरल पब्लिक को बांटेगा, और उसको कोई जीव जंतु को बांटेगा, चैरिटी देगा। जो इनकम हो रहा है वो तो हमारा नहीं है, भगवान का है। उसे 50% इनकम भगवान का है, मैंने देना है, और 25% मैंने अपना एंगेजमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, 25% इमरजेंसी के लिए। तो उस टाइप का सारे चीज है गृहस्थ धर्म में। लेकिन हम लोग गृहस्थ धर्म में आते नहीं है, हम लोग तो गृहमधी टाइप का रहते हैं। तो आश्रम में श्रम करना पड़ता है भगवान के लिए। तो यहाँ पे हम लोग गुरु जी के लिए करना चाहिए। तो when his household he perform many sacrifices, he must also give charity according to the country, time and candidate। स्थान काल पात्र के हिसाब से दान देना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग चैरिटी इन गुडनेस, पैशन इन गुडनेस, कौन सा सत्वगुण दान है, रजोगुण है, तमोगुण है, इसको पता ना चाहिए। इट डिस्क्राइब्ड इन भगवत गीता। Then after retiring from household life, upon accepting the order of Banprastha, he undergoes goes severe penances, living in the forest, dressing with ट्री बार नॉट सेविंग एक्सेट्रा। तो ये वानप्रस्थ का प्रिंसिपल है। लेकिन ठीक है, हम लोग के लिए पेड़ का बकल जो है, ट्री बार्क पहनना जरूरत नहीं है। हाँ, या हम लोग चतुर्मास पालन करते हैं, पूरा सेविंग नहीं करते हैं, ऐसे नहीं है। तो हम लोग का ये प्रोसेस में अभी सिचुएशन टाइम के हिसाब से चेंज किया गया है। तो हम लोग वानप्रस्थ में रहेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम भगवान के लिए देंगे। तीर्थ स्थान भ्रमण कर सकते हैं वहाँ, और डिफरेंट जगह जाके भगवान को दर्शन कर सकते हैं, उनका बारे में श्रवण कर सकते हैं, और फिर अधिक से अधिक भगवान के श्रवण कीर्तन में एंगेज होना चाहिए। एंड उसमें प्रचिंग भी कर सकते हैं। तो बाय कैरिंग आउट द ऑर्डर्स ऑफ ब्रह्मचर्य, हाउस होल्डर एंड वानप्रस्थ, एंड फाइनली संन्यास, वन बिकम्स एलिवेटेड टू द परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ। तो ये जो संन्यास भी कलयुग में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन संन्यास लेने से अच्छा है। तो सम आर देन एलिवेटेड, क्योंकि कम्प्लीटली भगवान के लिए टाइम दे सकता है। सम आर देन एलिवेटेड टू द हेवनली किंगडम्स, and when they become even more advanced, they are liberated in the spiritual sky, either in the impersonal Brahmajyoti or in Vaikuntha planets or Krishna Loko. This is the path outlined by Vedic literatures. तो लास्टली ये डिफरेंट सिचुएशन में ब्रह्म ज्योति कौन जाएगा, तो ज्ञानी, एंड इसमें ब्रह्म ज्योति जाएगा, और इन द वैकुंठ प्लैनेट तो ध्यानी। कुछ लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, और कुछ लोग ज्ञानी जो ध्यानी परफेक्शन होने से वो लोग जा सकते हैं वैकुंठ प्लैनेट्स में और कृष्ण लोक में। तो भक्त है, तो दिस भक्त भी वैकुंठ प्लैनेट में जा सकते हैं एंड कृष्ण लोक को जा सकते हैं। तो दिस इज द पाथ आउटलाइंड बाय द वैदिक लिटरेचर्स। द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस हाउएवर इज दैट by one stroke, by engaging in devotional service, one can surpass all the rituals of the different orders of life। तो ये जो वर्णाश्रम सिस्टम क्रिएट किया गया कि ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो ये भक्ति में अगर परफेक्शन हो जाएगा तो उसके लिए ब्रह्मचर्य जो 4 सिस्टम है उसके लिए वो मैंडेटरी नहीं है, दैट इज ऑप्शनल है। तो इसलिए यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि एक बार कृष्णा कॉन्शियसनेस में फुल्ली आ जाएगा तो इसलिए जो 4 सिस्टम को उसको जो है उसके लिए अलग अलग सिचुएशन अलग नहीं है। वो सारे चीज को कभी भी कैसे सिचुएशन में कर सकता है। जो शुद्ध भक्त है कभी वो श्रद्धा भी करेगा, कभी वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सकता है, कभी भगवान का पुजारी सेवा कर सकता है। तो ये उस टाइम में कर सकते हैं। So the word idam viditva indicate that one should understand the instructions given by Sri Krishna in this chapter, and idam viditva one should know भगवान क्या बोल रहे हैं। And 7th chapter in Bhagavad Gita, one should try to understand these chapters not by scholarship or mental speculation, but by hearing them in association with devotees। इसको कैसे समझेंगे? अपना ऐसे पढ़ के समझ नहीं सकते हैं स्पेकुलेशन करके, या इसीलिए भक्त से मेंटल स्पेकुलेशन करना नहीं है। एंड कौन सा सही कौन सा गलत पता नहीं चलेगा, हम लोग पढ़ते जाएंगे, हम एक इंटरप्रेट करते जाएंगे, लेकिन ऐसे होगा नहीं। इसलिए भक्त का गाइडेंस में रह के, भक्त का एसोसिएशन में, ये प्योर डिवोशन में रहते हुए इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुन के पता चलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो डिवोटी एसोसिएशन में सुनना पड़ेगा, यहाँ पे बोल रहे हैं। देन हिज लाइफ एट वंस, हाँ, चैप्टर 7 थ्रू द वर्ड इज
चैप्टर 7 थ्रू 12 आर द एसेंस ऑफ भगवद गीता। हम लोग अभी डिस्कस किया था फर्स्ट 6 चैप्टर कर्म षट्क, जो नेक्स्ट 6 चैप्टर अभी ये चल रहा है, ये भक्ति षट्क, व्हिच इज कॉल्ड भक्ति इज एसेंस। तो इसलिए एसेंस ऑफ द भगवद गीता, और ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आएगा बीच में, ये चल रहा है अभी, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज चल रहा है। 7 8 चैप्टर इज कॉल्ड मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, 9 चैप्टर इज कॉल्ड द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो चैप्टर 2 टू टू 3 एंड अप टू 5 भी आप ले सकते हो। एंड इसको बोलते हैं 6 तक, इसको हम बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, क्योंकि सोल एंड सोल का बारे में बताते हैं, एंड शरीर और सोल का डिफरेंस क्या है ये बताते हैं। एंड 7 8 चैप्टर में सोल का ऊपर में भगवान का बारे में बताते हैं, लेकिन जो 9th चैप्टर में भगवान को जानने के बाद में उनका सेवा में, ऑनरली डिवोशन में एंगेज होना बताते हैं, और इसीलिए मोस्ट कॉन्शियस नॉलेज। पहले तो जानते हैं सोल कौन है और इसका रिलेशन क्या है भगवान के साथ में, वो जान गए। एंड देन धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते हुए, तो ये 7th एंड 8th चैप्टर में भगवान का स्वभाव एंड प्रभाव, उनका एनर्जी एंड ऑल दिस थिंग्स, उनका डिटेल्स हम जान जान सकते हैं। देन जानने के बाद में उनके लिए हमारा गौरव भाव आ जाता है, तो हम उनको सेवा करने में लगते हैं। दैट कॉल्ड मोस्ट मोस्ट कॉन्शियस नॉलेज। तो तो इसीलिए जो इन दी एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, देन दिस लाइफ, देन हिज लाइफ एट बिकम ग्लोरिफाइड बियॉन्ड ऑल पेनेंसेस। उसके लिए कोई पेनेंसेस जो सेक्रीफाइस है या चैरिटीज है, स्पेकुलेशन है, ये सब का बियॉन्ड है। फॉर वन कैन अचीव ऑल द रिजल्ट्स ऑफ दीज अचीव्ड सिंपली बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भक्ति कर लिया तो इसमें ऑटोमेटिकली सारी चीज आ जाता है। तो one who has a little faith in Bhagavad Gita should learn Bhagavad Gita from a devotee, because in the beginning of the 4th chapter it is stated clearly that Bhagavad Gita can be understood only by devotee. भक्त का माध्यम में भक्त ये गीता सुनना पड़ेगा। No one else can perfectly understand the purpose of Bhagavad Gita. One should therefore learn Bhagavad Gita from a devotee of Krishna, not from the mental speculators, so-called Gyani. So this is a sign of faith. One who searches for a devotee and fortunately gets a devotee association, one actually begins to study and understand भगवद गीता। तो इसलिए जो हम लोग ढूंढना है, भक्त कहाँ है, कौन शुद्ध भक्त है, एंड देन गुरु कृष्ण कृपा से हम लोग वो भक्त को मिलेगा, तो उनका गाइडेंस में रह के उनसे भगवद गीता को श्रवण करेंगे, तो रियली आगे बढ़ सकते हैं। बाय एडवांसमेंट इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी, वन इज प्लेस्ड इन डिवोशनल सर्विस, एंड दिस सर्विस डिस्पेल्स all one's misgivings about Krishna or God, and Krishna's activities, form, pastimes, name, and other features. भक्त का साथ में रहते हुए भक्ति करेंगे, तो अभी हम एक्चुअली भक्ति का महात्म्य या भगवान को हम जान सकते हैं, भगवान को नाम रूप गुण लीला को रियलाइज कर सकते हैं। अगर भक्त से सुने, भक्त का तो माने जो रियलाइजेशन से, उनका कृपा से हम लोग ये समझ सकते हैं। तो अवैष्णव मुख गिरनाथ पुत हरि कथामृत, तो नैव माने श्रवण नैव कर्तव्यम सर्वोजिष्ट यथापय। तो इसलिए वैष्णव का मुख से श्रवण करना पड़ेगा, एंड उनका गाइडेंस में रहने से हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनका कृपा से हम समझ सकते हैं। After these misgivings have been perfectly cleared away, one becomes fixed in one's study. So then one really relishes the study of Bhagavad Gita and attains the state of feeling always Krishna conscious. हम लोग ऐसे ही भगवद गीता पढ़ने से हमको कुछ नहीं, समझ में नहीं आएगा। जब भगवान का भक्त का साथ में गाइडेंस में रह के श्रवण करते हैं, तभी भक्ति क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं और क्या है, उनका कृपा से हम समझ सकते हैं। In the advanced stage, one falls completely in love with Krishna. This highest perfection stage of life enables the devotee to be transferred to the Krishna's abode in the spiritual sky, Golok Vrindavan, where the devotee becomes eternally happy. तो यहाँ पे ये श्लोक में समराइज कर देते हैं लास्ट को श्रील प्रभुपाद ने। द हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज ऑफ लाइफ इज टू बिकम अ डिवोटी, और डिवोटी होने से ऑटोमेटिकली कैसे भी शरीर त्याग करेगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा गोलोक वृंदावन को। तो इसलिए डिवोटी बनने के लिए ये लास्ट को इतना बताते हैं कि डिवोटी कैसे बनेंगे। डिवोटी एसोसिएशन में रहना है, और उनका एसोसिएशन में रह के उनसे शुद्ध भक्त श्रवण करना पड़ेगा, और श्रवण कीर्तन सब करना पड़ेगा, उनका एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, भक्त का गाइडेंस में रह के भक्ति करना है, तभी हम लोग भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। नॉट बिकॉज दैट ठीक है टाइम फिक्स कर लिया हम चला जाएगा, तो इस श्लोक माने अच्छा टाइम में चला गया, भक्ति नहीं करते हुए मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए भक्ति करने से हम लोग को रियली भगवत धाम जा सकते हैं। तो दिस इज द
thus and the Bhakti on the purpose to the 8th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of attaining the Supreme. So this is the discussion of Bhagavad Gita chapter 8 today.